Hi everyone, right now we are talking about renal tubular processing of glucose. We're going to be discussing four different aspects of glucose. One is the plasma concentration of glucose, the other is the filtration load of glucose, the other is reabsorptive capacity of glucose, and then the excretory load of glucose. So what happens is that in a healthy individual, obviously there's some glucose that gets filtered. Glucose freely filters, right? And then the 100% of the entire amount which is filtered, it's completely reabsorbed. None of that is excreted in urine. We're talking about a healthy individual. Obviously, the patient of diabetes mellitus, in them the case is different. In them you see glucosuria. Now what happens is that we have sodium glucose co-transporters, and I don't need to revise that sodium goes down its concentration gradient and glucose is actively transported. Secondary active transport takes place and glucose is reuptaken. And then you have glue transporters here, and that's how glucose goes back into the blood, interstitium, and then the blood. Now, if the plasma glucose concentration increases, then what does that mean? This means that the filter load of glucose will also increase. अगर plasma में glucose ज़्यादा होगा तो ज़्यादा filter होगा क्योंकि that entire thing is filtered here, and then that entire amount is reabsorbed, right? लेकिन यहाँ एक मसला आता है, फिल्टर होने में तो कोई मसला नहीं आएगा, जितना भी प्लाज्मा से पीछे से आ रहा है, इवन इफ द पर्सन हैज कंज्यूम्ड a lot of glucose, उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, वो सारा फिल्टर होगा, ठीक है. लेकिन reabsorptive capacity बैरियर सेट करती है. रीअब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इसकी एक सर्टेन वैल्यू है जिस अमाउंट तक ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो सकता है. सो here's a graph that shows कि अगर प्लाज्मा ग्लूकोज की concentration increase होगी, filtered load of glucose will increase. Yes, इसमें there is no second say कि वो filter तो सारा ही हो जाएगा, तो इसलिए वही बात है, it's a straight line, वो सारा ही filter हो जाएगा. लेकिन this is the graph that we're going to be primarily focus on glucose reabsorption, and you can see how it levels off at a certain point. तो ग्लूकोज की reabsorption एक certain point तक होती रहती है, that is renal threshold. जैसे renal threshold achieve हो जाएगा 350, at this point वो ग्लूकोज reabsorb होना, उसकी capacity achieve हो रही है, और there'll be a splay, there'll be a curve, जिसका मतलब है कि ये जो co-transporters and they are starting to be occupied, ये concentrated हो रहे हैं, ठीक है. और इनकी कंसंट्रेशन की वजह से अब ज्यादा ग्लूकोज इट्स नॉट बीइंग अपटेकन. लेकिन इसमें स्प्ले क्यों आ रहा है? आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली ऐसे होना चाहिए था, देयर शुडंट हैव बीन अ स्प्ले. स्प्ले के दो रीजन है. वन रीजन इज क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नेफ्रॉन्स, आई टोल्ड यू 1.2 मिलियन पर किडनी. अब हर किडनी की जो कैपेसिटी है, रीअब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, इट्स डिफरेंट. ये क्या पता रीअब्जॉर्ब कर ले इवन अप टिल 300, ये क्या पता 350 तक रीअब्जॉर्ब कर सकता है, ये क्या पता 250, एंड सम कैन इवन reabsorb below than that, मतलब even lower than that. So ये मसला आता है कि सबकी reabsorptive capacity difference में difference है, तभी there is this play कि इस capacity पर एक नेफ्रॉन अब completely concentrated है, तो अब उसने काम करना छोड़ दिया, लेकिन बाकी तो काम कर रहे हैं. तो that's why there is this play. I hope you are making sense. और दूसरा reason for the, so first reason is the heterogeneity of the nephrons, and the second reason is low affinity of sodium glucose co-transporter. इसका क्या मतलब है low affinity? इसका मतलब है कि अगर इस ग्लूकोज को इसने पकड़ा हुआ है, बिकॉज द एफिनिटी इज लो, तो इतनी टाइटली बाउंड नहीं है. फॉर सम रीजन दिस कैन फॉल ऑफ, कोई मिस्टेक हो सकती है और ये गिर सकता है, ठीक है. और जब ये गिर जाएगा तो दूसरा को ट्रांसपोर्टर है वो उसको वापस उठा लेगा और अंदर ले जाएगा. हाँ, ऐसा हो सकता है. लेकिन अगर रीनल ब्लड फ्लो में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है और फिल्ट्रेट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आ रही है, तो ये होगा कि जो दूसरा है वो सारे जितने भी आपके को ट्रांसपोर्टर है सारे ऑक्यूपाइड है. तो अगर कोई ऊपर से गिर गया बिकॉज ऑफ लो एफिनिटी, तो नाउ इट वोंट हैव अ सेकंड चांस इसको कोई और रिक्लेम करो और अंदर लेकर जाए. नहीं, अगर वो गिर गया तो वो ज़ाया हो जाएगा. अगर ये वाला गिर गया तो इट वोंट हैव अनदर चांस, क्योंकि बाकी सारे तो कॉन्सेंट्रेटेड है, दे ऑल आर ऑक्यूपाइड. तो वो गिर गया तो वो ज़ाया हो जाएगा. तो बिकॉज of low affinity of sodium glucose co-transporters, that's also the second reason of splay. तो heterogeneity है nephrons की, और दूसरा रीजन इज लो एफिनिटी, ठीक है. अब द अदर थिंग इज कि जैसे ही ये कर्व शुरू होता है, ये स्प्ले शुरू होता है, कि मतलब जो ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ये मतलब इट्स स्टार्टिंग टू लेवल ऑफ. ये उस लेवल से नहीं हो रही जिस लेवल का फिल्टर आ रहा है. फिल्टर लोड इतना आ रहा है, लेकिन अब रीअब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो गई है. तो जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन कम होना शुरू होगी, ऑब्वियसली जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, वो सारा ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा, यूरिन में आएगा, ठीक है. तो जहाँ एक्सक्रीशन शुरू होती है वो रीनल थ्रेशोल्ड है, और जहाँ ये जो ग्लोमेरुलर रीअब्जॉर्प्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर लेती है, दैट्स अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम. सो अगेन जहाँ एक्सक्रीशन शुरू होती है वो रीनल थ्रेशोल्ड है, ठीक है. और ये क्या वैल्यू है? 250 से 350. कुछ बुक्स में कहते हैं 180,
से 370, तो ये यू कैन वेरी, ठीक है, आप इसकी वैल्यूज यू कैन लर्न इट अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो रीनल थ्रेशोल्ड कहाँ क्या है? जहाँ से यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज शुरू होती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होना स्टार्ट होता है, ये रीनल थ्रेशोल्ड है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। और व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम? ये तब अचीव होता है जब ऑल द ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स आर ऑल फुली सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। रिमेंबर वी स्टडीड दिस पहले भी, कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का जो फिनोमिना है ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज अमीनो एसिड वो शो करते हैं, राइट? All those substances that are reabsorbed from luminal side to the cellular side, special transporter proteins display the phenomenon of tubular maximum. This means that they can reach their full concentration और उसके बाद they won't be able to handle any more glucose, ठीक है? तो renal threshold क्या है? जहाँ से glucose will start appearing in urine। और transport maximum क्या है? जब all the glucose transporters are fully they are occupied। और उसके अलावा display की दो reasons क्या है? Heterogeneity and low affinity। Now here you can see renal threshold और transport mechanism maximum of glucose में क्या difference है? Renal threshold of glucose is the point when plasma glucose level at which is the plasma glucose level at which the glucose first starts appearing in the urine. So this is glucose first starts appearing in urine. Then you have, because tubular reabsorption starts failing for some nephrons. What is tubular maximum? Tubular maximum is the maximum amount of glucose the tubules can reabsorb per minute. When all nephrons ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर फुली सैचुरेटेड। जब सारे नेफ्रॉन्स जितने भी 1.2 मिलियन है उन सब के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स फुली सैचुरेट हो जाए, तो दैट मींस टी मैक्स हैज बीन अचीव्ड। और व्हाट इज ये क्या कहते हैं इसको? रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड क्या है? जब द ग्लूकोज आर फर्स्ट अपीयरिंग इन यूरिन, राइट? So renal threshold, plasma level when glucose starts appearing in urine, and transport maximum is the maximum tubular reabsorptive capacity of all the nephrons. Renal threshold की वैल्यू दी हुई है 180, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की वैल्यू दी हुई है 375 mg per minute. So renal threshold when the glucose begins to spill into urine, and transport maximum is the complete saturation of transporters. Renal threshold start of glucose urea, transport maximum full saturation state. And then heterogeneity है, ठीक है, that's one of the reasons कि spilling शुरू हो जाती है initially, and there's a splay in the glucose titration curve. और this is your renal threshold, जिसके बाद glycosuria शुरू हो जाता है। Yes. Now, moving forward, there are three cases of glucose urea. ग्लूकोज यूरिया के तीन केसेस हैं। एक है ग्लूकोज यूरिया इन पेशेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस। डायबिटीज मिलाइटिस के पेशेंट के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है वही ज़्यादा है। तो जब ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन या प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, हालांकि उनका जीएफआर नॉर्मल होता है, तो फिल्टर लोड ज़्यादा होगा, तो फिर ज़्यादा फिल्टर लोड आएगा। दिस इज इन द केस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलाइटिस, तो फिर उसमें भी ग्लूकोज यूरिया होगा। फिल्टर लोड पर डिपेंड करता है ना ग्लूकोज यूरिया। फिल्टर लोड ज़्यादा होगा तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ ग्लूकोज यूरिया। तो इस पेशेंट में जीएफआर तो नॉर्मल है। अच्छा, फिल्टर्ड लोड इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एंड जीएफआर। इस पेशेंट में जीएफआर नॉर्मल है लेकिन प्लाज्मा concentration of glucose ज़्यादा। दिस इज कॉमन सेंस, ये हमें पता है। नाउ अनदर थिंग इज a physiological state which is pregnancy. In pregnancy what happens is that the lady, her GFR has increased. So pregnancy mein the GFR increases a lot. That's why it's very important for them to maintain their blood pressure. Also because already the GFR is so high, the renal blood flow is so high. So they need to be very, very and extremely careful about their blood pressure. So filter load increases because their GFR is high, लेकिन blood glucose level तो उनका normal ही होता है. And तो इस केस में भी ब्लड रिपोर्ट में there won't be excessive glucose in the blood, लेकिन लैब रिपोर्ट ऑफ यूरिन में दिखाएंगे कि there is glucose in urine. And the third case is उन पेशेंट्स का जो जिनका कोई थोड़ा जेनेटिक मसला होता है, उनके जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स है ना, दे डू नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली और दे आर लेसर इन नंबर, जिसकी वजह से इवन एट द अपर लेवल ऑफ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, अगर अपर लेवल पर भी होगा, मतलब वो डायबिटीज मेलाइटिस में क्लासीफाई नहीं कर रहे लेकिन अपर लेवल ऑफ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है, फिर भी उनका फिल्टर लोड ज़्यादा होगा क्योंकि देयर इज रिड्यूस्ड रीनल थ्रेशोल्ड, मतलब अर्ली स्टेज पर ही द ग्लूकोज स्टार्ट अपीयरिंग इन यूरिन। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब ये है। एंड देन उनके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स दे वेरी लेस, राइट? तो इसलिए लेट्स जस्ट रिकॉल इसकी समरी. सो दीज आर द थ्री केसेस ऑफ ग्लूकोज यूरिया. द फर्स्ट इज डायबिटीज मिलाइटिस, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया के प्लाज्मा में ही ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज इज वेरी हाई, रीनल थ्रेशोल्ड जो है
वो obviously क्रॉस हो जाता है and tubular transporters become overwhelmed, glucose starts spilling into urine. The second case is pregnancy. Renal threshold decreases. Tubular capacity slightly altered. Even normal or mildly elevated plasma glucose can cause glucosuria. इसमें कोई diabetes नहीं है. This is normal condition. मतलब it's a physiological state. ठीक है. अब renal tubular glucosuria, इसमें blood glucose normal है, लेकिन there is tubular defect in glucose reabsorption. Mutation होती है इनके SGLT2 जो इनके ट्रांसपोर्टर्स हैं इनमें, सोडियम एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इनमें मसला होता है, जिसकी वजह से इवन एट द हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज इट स्टार्ट्स अपीयरिंग इन यूरिन बिकॉज इनका रीनल थ्रेशोल्ड थोड़ा कम होता है. सो या दैट्स प्रीटी मच इट.